Hello students, today we are going to start with sequencing problem. Now in the sequencing problem we are going to study about the meaning of the sequencing problem. We'll see some algorithm for solving the sequencing problem. Then we are going to solve some problems where you will be having n jobs and 2 machines. Let's see what do we mean by a sequencing problem. Let there be n number of jobs to be performed one at a time on each of m different machines, where the order of processing on machine and the processing time of jobs on the machine is known to us. Now here we are having n number of jobs, so there are n number of jobs, and suppose there are m different machines given to us. The order of processing the machines is also given to you. The time required for the jobs on the machine is also known to us. Now it is very important to decide the order in which the job should be lined up for processing so as to complete the entire schedule in minimum time. Such type of problem where one has to determine the order or sequence in which the job are to be processed through machines so as to minimize the total processing time is called a sequencing problem. Now there are few conditions. Let's look at the condition. No machine can process more than one job at a time. तो हर एक मशीन एक टाइम में सिर्फ एक ही जॉब करेगा. Each job once started must be processed till its completion. मतलब अगर आपने एक मशीन के ऊपर एक जॉब करना चालू किया है तो चालू होने से पूरा खत्म होने तक वो मशीन उसी जॉब के ऊपर काम करेगी. It cannot stop in between. The processing time are independent of the order of processing the job. Each machine is of different type. सो हर एक मशीन जो है वो अलग अलग टाइप का है. ये नहीं कि सभी मशीन सेम टाइप के एंड द जॉब इज गोइंग थ्रू ऑल द सेम मशीन्स अगेन एंड अगेन. सो ईच जॉब विल बी परफॉर्म ऑन डिफरेंट मशीन्स. The time required to transfer a job from one machine to another is negligible. मतलब एक मशीन से दूसरे मशीन में वो जॉब परफॉर्म करने के लिए जो बीच वाला टाइम है उसको हम नेग्लिजिबल टाइम लेते हैं. दैट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट. वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम इज टेकन ओवर देयर, सो इट इज नॉट कंसिडर्ड. नाउ लेट्स लुक एट फ्यू टर्मिनोलॉजीज. द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज total elapsed time. Let's see what do we mean by total elapsed time. It is the time required to complete all the jobs, that is the entire task. Thus the total elapsed time is the time between the beginning of the first job on the first machine till the completion of the last job on the last machine. सो टोटल इलैप्स टाइम मतलब पहले मशीन के ऊपर पहला जॉब शुरू करने से लेके लास्ट मशीन तक, लास्ट जॉब खत्म होने तक जो भी पूरा टाइम है दैट इज कॉल्ड एज अ टोटल इलैप्स टाइम. नेक्स्ट इज आइडल टाइम. नाउ लेट्स सी व्हाट डू यू मीन बाय आइडल टाइम. Idle time is the time when a machine is available but not being used. That is, the machine is available but it is waiting for a job to be processed. So sometimes ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट जॉब से कंप्लीट होने के बाद दूसरे जॉब में जाने के लिए थोड़ा टाइम है अभी और सेकेंड मशीन उस टाइम के लिए वेटिंग पे है. देन दैट टाइम इज कॉल्ड एज द आइडल टाइम. नाउ देयर आर types of sequencing. We'll be studying two types of sequencing n jobs on 2 machines and sequencing n jobs on 3 machines. Now we are going to study about sequencing n jobs on 2 machines. Let's see what is the algorithm for finding the optimal sequence. Let there be n jobs, each of which is to be performed through 2 machines A and B in the order AB. Let the processing time A1, A2, A3, AN, B1, B2, B3, BN be given. So हमारे पास n number of jobs है. There are 2 machines, A machine and B machine,
एंड इसका ऑर्डर दिया हुआ है, पहला जॉब हमारा हमेशा ए से जाएगा, मशीन ए पे होगा, उसके बाद वो होगा बी पे। एंड द प्रोसेसिंग टाइम इज गिवन A1, A2, A3, AN। तो ए मशीन के ऊपर ये एन जॉब्स परफॉर्म करने के लिए उनके टाइमिंग्स है, उसी तरह से बी मशीन के ऊपर उसके टाइमिंग्स हो जाएंगे B1, B2, B3 एंड BN। सो दीज आर द टाइम्स गिवन टू अस। Now we'll start with the steps. The first step is we'll find out what is the minimum between AI and BI। तो ये जो AI और BI टाइमिंग्स हमारे पास है उसमें से हम ढूंढेंगे मिनिमम वैल्यू। Now the minimum can be anywhere, AI में आ सकता है या BI में आ सकता है। So let's see what happens. Now if the minimum processing time is AR, R is the job, so the process is R job first. If the minimum processing time is BS, then we process the S job in the last। अब ये क्या है? Here if the order is given AB, A मतलब A फर्स्ट आ रहा है, B सेकेंड आ रहा है, तो हम मिनिमम जब ढूंढते हैं तो फर्स्ट जॉब में अगर फर्स्ट मशीन के ऊपर हमारा मिनिमम टाइम आता है तो वो जॉब हम हमेशा पहले करेंगे, और मशीन 2 के ऊपर अगर मिनिमम आ गया तो वो जॉब हम हमेशा लास्ट में करेंगे। इन केस दोनों जगह पे आ रहा है, ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, इफ देर इज अ टाई बिटवीन ए एंड बी देन यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम आर्बिटरी। अगर ए के ऊपर आएगा तो पहले जॉब परफॉर्म करेंगे, बी के ऊपर आएगा तो एंड में जॉब परफॉर्म करेंगे। After this is done, we cross off the jobs already placed in the sequence and repeat the steps 1 to 3 till all the jobs are placed in the sequence। तो ये जो हमारे 3 steps है ये हम सभी जो हमारे jobs है सभी jobs के लिए हम same use करेंगे। Once the sequence is decided, prepare the work table and find the total elapsed time। Let's take an example, then we'll understand what happens here. So here is the example. Now we have 5 jobs, each of which has to go through machines A and B in the order AB। So A के ऊपर पहला मशीन, A मशीन के ऊपर पहले जॉब जाएगा और फिर जाएगा वो B मशीन के ऊपर। Processing time in hours are given as the table। So here we are given the processing time। jobs हमारे पास है 1, 2, 3, 4 and 5। A मशीन के ऊपर टाइमिंग्स दिए हैं 3, 3, 7, 5 and 2। B मशीन के ऊपर जॉब 1 के लिए टाइम है 6। B2 will take job 2 will take time on B is 4। Then 3 machine third job will take 2 hours, fourth job will take 1 hour and fifth job will take 5 hours on the machine B। Determine a sequence of these jobs that will minimize the total elapsed time T, idle time for the machine A and the idle time of machine B। तो हम लोग को पहले total elapsed time B find out करना है, then we want the idle time for machine A as well as for machine B। So we'll start with our process। Now we are just going to make use of the table, so I'm just copy down the table over here। This is our table, जो पीछे क्वेश्चन में था वही टेबल है ये। अब फर्स्ट स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सी दिस टेबल। ये टेबल के अंदर हम देखेंगे मिनिमम वैल्यू कौन सा है। सो इफ यू लुक एट द मिनिमम वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू इज 1। अब ये 1 कहाँ पे आ रहा है? मशीन बी में आ रहा है। हमारा ऑर्डर क्या है? ए बी। तो पहला जॉब हमारा ए के ऊपर जाना चाहिए और फिर बी के ऊपर। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस इज गोइंग टू वर्क। So we observe that the minimum AI BI is equal to 1 which corresponds to job 4 on machine B। job 4 के लिए machine B के ऊपर है। अब ये machine B में आया, B मतलब सेकेंड है, तो हमेशा ये वाला जॉब है वो सबसे एंड में हम प्रोसीड करेंगे। सो देयरफॉर द जॉब 4th जॉब इज प्लेस्ड लास्ट इन द सीक्वेंस। तो हम एक टेबल बनाते हैं और लास्ट में हम इसको डाल देते हैं नंबर 4। अब जैसे हमने इसको डाल दिया यहाँ पे, वी आर गोइंग टू कैंसल दिस होल कॉलम। ये पूरा कॉलम हम मिटा देंगे। सो देन द प्रॉब्लम इज गोइंग टू रिड्यूस टू। अब हमारा प्रॉब्लम छोटा हो गया, ये पूरा हमारा कॉलम डिलीटेड।
Now we'll just write down the same values over here. Again we'll follow the step same, that is we are going to check out what is the minimum value on this table. तो ये जो टेबल हमारे पास है इसमें मिनिमम वैल्यू ढूंढेंगे. सो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हमें मिला है यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2. नाउ देयर इज अ टाई. यहाँ पे कैसा है, दोनों वैल्यू ले रहा है, ए में भी एक वैल्यू ले रहा है, बी में भी ले रहा है. तो ए में अगर रहेगा तो वो क्या करेगा, जाएगा यहाँ पे फर्स्ट में, और बी में अगर है तो ये जाएगा लास्ट में. लेकिन लास्ट में ऑलरेडी यहाँ पे 4 था, 4th जॉब इज गिवन, सो 4th जॉब के आगे ये जाएगा और यहाँ पे वो जाएगा तो हो जाएगा 3rd जॉब. सो द सीक्वेंस विल बी, नाउ यू गेट द मिनिमम AI BI is equal to 2 which correspond to the 5th job on machine A and 3rd job on machine B. Now what we do is, therefore 5th job will be placed first and 3rd job is placed next to the last job. तो लास्ट जॉब के आगे हमने इसको डाल दिया, तो हमें मिला ये वाला सीक्वेंस. द सेम थिंग आई एम राइटिंग ओवर हियर. सो ये मिला हमें हमारा सीक्वेंस. अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, विल जस्ट कैंसल ऑफ दिस 2 कॉलम्स. अब ये 2 कॉलम हमारे चले गए. नाउ द प्रॉब्लम विल रिड्यूस टू, अब हमारा प्रॉब्लम छोटा हो गया. नाउ इट हैज बिकम दिस. अब इसके बाद अगेन विल चेक आउट व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू. नाउ द मिनिमम वैल्यू इज 3 वैल्यू यहाँ पे भी है, 3 वैल्यू यहाँ पे भी है. नाउ देयर इज अ टाई, और वो भी कैसा है, मशीन ए के लिए ही दोनों हो रहे हैं. सो नाउ द मिनिमम AI BI is 3 which correspond to the first and the second job on machine A. So therefore job 1 and 2 can be placed after the job 5th in any order. That is, आप फर्स्ट यहाँ डालो, सेकेंड यहाँ डालो, 5th तो ऑलरेडी था हमारे पास, ये 3 तो हमने पहले ही प्लेस कर दिए थे. अब हमें ये 2 को प्लेस करना है. सो आइदर यू कैन राइट द फर्स्ट जॉब हियर एंड द सेकेंड जॉब हियर, और एल्स यू कैन आल्सो टेक द सेकेंड जॉब फर्स्ट एंड द फर्स्ट जॉब नेक्स्ट. सो देयरफॉर द ऑप्टिमल सीक्वेंसेस, द ऑप्टिमल सीक्वेंस हमें यहाँ पे 2 मिले हैं, दैट इज 5th, 1st, 2nd, 3rd, 5th. Or you can also say it is 5th, 2nd, 1st, 3rd and 4th. अब ये जो हमें मिला है इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए है वर्क टेबल. सो विल फाइंड आउट व्हाट इज द वर्क टेबल. तो वर्क टेबल ड्रॉ करने के लिए पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं. सो आई एम जस्ट कॉपी डाउन द क्वेश्चन टेबल अगेन ओवर हियर. टोटल इलैप्स टाइम फॉर फर्स्ट सीक्वेंस, ये पहले वाले सीक्वेंस के लिए हम देखते हैं हमारा टोटल इलैप्स टाइम्स कैसे रहेगा. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. सो विल राइट डाउन द जॉब्स हमने ये ऑर्डर जो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर है 5th, 1st, 2nd, 3rd, 4th, तो वही ऑर्डर हमने यहाँ पे लिखा है. मशीन ए एंड मशीन बी, अब मशीन ए वर्क करने के लिए हम जो भी जॉब है वो पहले इन करेंगे मशीन ए में, फिर आउट करेंगे. सेम थिंग फॉर मशीन बी, इन एंड आउट. नाउ विल स्टार्ट विद द जॉब्स. अब 5th जॉब हमारा मशीन ए के लिए वर्क कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमारे टेबल में देखेंगे. व्हेन वी आर जस्ट गोइंग टू फर्स्ट डू एवरीथिंग फॉर मशीन ए. हम पहले मशीन ए के लिए पूरा वर्किंग करेंगे और बाद में हम वर्किंग करेंगे फॉर मशीन बी. सो फॉर मशीन ए, now whenever we are starting with the machines, इसका जो इन टाइम रहेगा वो 0 आर रहेगा. ओके मतलब अभी हमने मशीन के अंदर वर्क डाला नहीं है. नाउ वी आर पुटिंग द वर्क, सो दैट इज व्हाई इन टाइम इज 0. अब आउट टाइम देखना है. अब हम जाएंगे हमारे क्वेश्चन वाले टेबल में. क्वेश्चन वाले टेबल में वी आर लुकिंग एट द फर्स्ट रो. मशीन ए के लिए हम टाइमिंग देख रहे हैं. मशीन ए 5th जॉब के लिए कितना टाइम ले रहा है, 2 आवर्स. सो ये 0 प्लस दिस 2 आवर्स, सो 0 + 2 हो जाएगा 2. अब ये जॉब आउट होगा तब सेकेंड जॉब इन होगा, तो इसका जो भी आउट टाइम रहेगा वो हो जाएगा इसका इन टाइम. आफ्टर दिस इज डन विल गो अगेन इन द टेबल के अंदर देखेंगे ए मशीन में जॉब 1 के लिए कितना टाइम है, 3 आवर्स. सो दिस 2 प्लस दिस 3, सो दैट विल गिव अस 5. नाउ इसका आउट टाइम इसका इन टाइम हो जाएगा 3rd जॉब के लिए. सो नाउ वी लुक एट द जॉब. द नेक्स्ट जॉब इज सेकेंड जॉब. तो सेकेंड जॉब के लिए टाइमिंग कितना है, 3 आवर्स. सो 5 + 3 हो जाएगा 8. अगेन हियर द इन टाइम इज 8.
नेक्स्ट 8 प्लस फॉर थर्ड जॉब हम देख रहे हैं, थर्ड जॉब में यहाँ पे टाइमिंग दिया है 7, सो 8 प्लस 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 15. दिस इन टाइम रिमेन्स 15. अब फोर्थ जॉब में टाइमिंग कितना है 5, सो 15 प्लस 5 विल गिव अस द वैल्यू 20. सो दिस इज 20. सो ये हो गया हमारा मशीन ए के लिए. नाउ विल स्टार्ट विथ मशीन बी. अब मशीन बी का इन टाइम 0 नहीं होगा. दिस मशीन विल स्टार्ट ओनली ऑफ द फर्स्ट जॉब इज कंप्लीटेड ऑन दिस मशीन, और यहाँ का जॉब यहाँ पे जाएगा. तो हम क्या करेंगे, इसका जो भी आउट टाइम रहेगा वो रहेगा इसका इन टाइम. सो वी गॉट द वैल्यू ओवर हियर इज 2. अब हम वापस हमारे टेबल में देखेंगे. टेबल में फिफ्थ वैल्यू कितना है बी मशीन के लिए 5 है. सो दिस इज 2 प्लस 5 विल गिव अस 7. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू चेक आउट दिस वैल्यू एंड वी आर गोइंग टू चेक आउट दिस वैल्यू. इसका आउट टाइम 5 आवर्स है, इसका आउट टाइम 7 है. ये दोनों में जो भी नंबर बड़ा रहेगा वो नंबर यहाँ पे आएगा. तो हियर इट इज 5, हियर इट इज 7, द बिगेस्ट नंबर इज 7, तो यहाँ पे आएगा 7. ओके, नेक्स्ट 7. अब ये हम देखेंगे फर्स्ट जॉब में. फर्स्ट जॉब टेकिंग ऑन बी मशीन इज 6 आवर्स. सो 7 प्लस 6 करेंगे तो हो जाएगा 13. अगेन विल चेक दिस विद दिस वन. यहाँ का वैल्यू ये वाले वैल्यू के साथ हम चेक करेंगे क्योंकि इसका इन टाइम हमें देखना है, राइट. हालांकि ये 8 आवर्स में कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये मशीन हमारा 13 आवर्स तक वर्क कर रहा है. तो जब ये 13 आवर्स के बाद ये काम खत्म हो जाएगा तभी ये काम हम नया डाल सकते हैं उसके अंदर. सो दैट इज वाई वी टेक द मैक्सिमम आवर ओवर हियर. सो आफ्टर दिस मशीन गेट फ्री, द नेक्स्ट जॉब विल कम इन दिस मशीन. तो नेक्स्ट जॉब आने के लिए यहाँ पे 8 आवर्स है, यहाँ पे 13 है, सो वी टेक 13. Now again in the table, second job on machine B is taking 4 hours, so 13 plus 4 will give us 17. Again we'll check out which one is the maximum from these two, so 17 is the maximum. Next 17, and here we get the in time is 17. Now we go for the third machine on third job on machine B takes 2 hours, so that will give us 17 plus 2 is 19. Again we are going to check out which one is bigger. Here is 19, here is 20. अभी 20 बड़ा है तो यहाँ पे होगा 20. अब देखो क्या हो गया है, ये मशीन जो है मशीन बी को क्या हो गया है, 19 आवर्स में इसने ये जॉब कंप्लीट कर दिया. लेकिन ये जो ए मशीन के अंदर जॉब था, जॉब नंबर 4, इट इज गोइंग टू टेक मोर टाइम, 1 आवर ज्यादा ले रहा है. तो ये पहला जॉब 20 आवर्स में कंप्लीट करेगा एंड देन इट विल गो टू मशीन बी. सो नाउ विल चेक आउट इन आवर टेबल. मशीन बी में फोर्थ जॉब हमारा कितना टाइम ले रहा है, 1 आवर. सो दिस इज 20 प्लस 1 विल गिव अस 21. अब ये जो यहाँ पे हमें लास्ट टाइम मिला है, दिस इज द फाइनल टाइम दैट इज इट गोइंग टू टेक. तो यहाँ का जो टोटल वैल्यू है दैट इज कॉल्ड एज द टोटल इलैप्स टाइम्स. सो दैट इज द टोटल इलैप्स टाइम फॉर मशीन 5. दैट इज दिस सीक्वेंस, 5th, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th. इसके लिए ये कितना ले रहा है वो हम बाद में देखेंगे. अब ये तो हमने देख लिया, ये मशीन के लिए हमने ये टेबल ड्रॉ किया. अब इसके लिए भी हमें एक टेबल मिलेगा. सो लेट्स सी द टेबल ओवर देयर. अगेन विल स्टार्ट विद द सीक्वेंसिंग, विल डू द वर्क टेबल. सो 5th जॉब, सेकेंड जॉब, फर्स्ट जॉब, थर्ड जॉब एंड 4th जॉब. अब मशीन ए के लिए पहले वर्किंग करेंगे. द इन टाइम इज 0. Then this is 0 plus 0 plus 2. 0 plus 2 is 2. Then 2 as it is. 2 plus here the value is 3. 2 plus 3 is 5. Now here it is 5. तो इसका in time हो जाएगा 5. 5 and machine 1 के लिए it is taking 3. So 5 plus 3 is 8. So it will come as it is. Next is third machine के लिए it is taking 7 hours. So 7 plus 8. 7 plus 8 is 15. So this is 15. अब इसका in time हो जाएगा 15. Next is 15 plus 4 job के लिए है 5. So here it is 15 plus 5 is 20.
ये मशीन ए के लिए हो गया। अब मशीन बी के लिए स्टार्ट करते हैं। अब इसका जो आउट टाइम रहेगा वो रहेगा इसका इन टाइम। अब इसका आउट टाइम के लिए विल गो फॉर दिस टेबल अगेन। सो फिफ्थ जॉब ऑन सेकेंड मशीन इज टेकिंग 5 hours, सो 5 + 2 विल गिव अस 7। अब ये 7 और ये 5 में 7 बड़ा है तो 7 आ गया यहाँ पे। नाउ दिस इज 7 प्लस सेकेंड जॉब इज टेकिंग 4 hours, सो 7 + 4 विल गिव अस 11। अब वापस ये दोनों में अगर हमने देखा कौन बड़ा है तो 11 इज बिगर, विल टेक 11। नेक्स्ट इज 11 प्लस फर्स्ट जॉब में टाइमिंग इज 6, सो 11 + 6 इज 17। अगेन विल चेक आउट दिस जॉब एंड दिस जॉब, तो ये एंट्री हमारे वो हो जाएगा 17। नेक्स्ट इज 17 + 2, सो 17 + 2 विल गिव अस 19। So 17 + 2 we are getting here is 19. Now 19 और 20 में biggest value is 20, so here it is 20. Next value is 20 + 1 and 20 + 1 is 21. अब ये हो गया हमारा पूरा टेबल। So one table for one sequence, second table for the second sequence. नाउ द टोटल इलैप्स टाइम, अगर हमने दोनों टेबल को देखा तो दोनों टेबल में टोटल इलैप्स टाइम हमें मिला है 21 hours, सो इट विल कम 21। नाउ वी वांट टू चेक आउट व्हाट इज द आइडल टाइम फॉर मशीन ए। सो मशीन ए के लिए आइडल टाइम इज टोटल टाइम माइनस सम ऑफ प्रोसेसिंग टाइम ऑफ ऑल जॉब्स ऑन मशीन ए। तो हमारा जो टेबल है, टेबल में उसके एंट्रीज, क्वेश्चन टेबल में उसके एंट्रीज थे 3, 3, 7, 5, 2। विल add up all these and subtract it from the total elapsed time, so that is 21 minus 20 and it will give us 1 hour. उसी तरह से मशीन बी के लिए भी हम क्या करेंगे, टोटल टाइम माइनस द सम ऑफ प्रोसेसिंग टाइम ऑफ ऑल जॉब्स ऑन B, so that is 21 minus of 6 + 4 + 2 + 1 + 5 and that is 21 minus 18 giving us 3 hours. अब ये हो गया हमारा sum complete. Let's take one more problem. Find the sequence that minimizes the total elapsed times to complete the following jobs in the order AB. Find the total elapsed time and idle time for both the machines. So here we are given the table, jobs दिया है first, second, third, fourth, fifth, sixth and 7. मशीन A में टाइमिंग दिया है 7, 16, 19, 10, 14, 15 and 5. मशीन B में टाइमिंग्स दिए है 12, 14, 14, 10, 16, 5 and 7 for corresponding jobs. Now again we'll take down the table as it is. अब we'll start with the अल्गोरिथम। सबसे पहला हमें चाहिए है मेकिंग द सीक्वेंस। तो सीक्वेंस बनाने के लिए चेकिंग आउट द टेबल, मिनिमम वैल्यू अगर देखें, मिनिमम वैल्यू इज 5 over here and 5 over here, so we have got the minimum value, that is AIBI का मिनिमम हमें मिला है 5 which corresponds to the 7 job on machine A and 6 job on machine B. तो अगर ये A में आ गया है, ऑर्डर हमारा A B दिया है, अगेन द ऑर्डर इज A B, सो A में आएगा तो पहला होगा, B में आएगा तो लास्ट में जाएगा। सो देयरफॉर द जॉब 7th इज प्लेस फर्स्ट इन द सीक्वेंस एंड द जॉब 6th इज प्लेस इन द लास्ट ऑफ द सीक्वेंस। सो दिस इज हाउ इट इज बीन प्लेस्ड। सो 7 जॉब हमारा फर्स्ट होगा और 6 जॉब हमारा लास्ट होगा। अब हम ये दोनों कॉलम को डिलीट कर देंगे एंड अवर प्रॉब्लम विल रिड्यूस टू दिस। अब वापस सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे ये वाले टेबल के लिए। सो विल लुक एट व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू। द मिनिमम वैल्यू ओवर हियर इज 7, सो 7 आ गया मशीन ए में। सो मिनिमम वैल्यू बिटवीन AI and BI is 7 which corresponds to the first job on machine A. So therefore the first job is placed after the 7 job. तो ये 7 job हमारा है, उसके बाद आएगा हमारा first job. So let's write it down. तो ये हो गया हमारा टेबल, again writing it in the same way. Next, अगेन आफ्टर दिस जॉब इज डन, हम ये वाला पूरा कॉलम को कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा हुआ टेबल को हम वापस लिख लेते हैं। सो देन द प्रॉब्लम विल रिड्यूस टू, नाउ दिस इज द प्रॉब्लम।
Now we are again going to check out what is the minimum value. So if you look at the minimum value, it is 10 here and 10 here. तो ये दोनों जगह पे आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है. So now you can say minimum of AI BI is equal to 10, which corresponds to the fourth job on machine A and B. दोनों के लिए है. तो वापस हो सकता है आप यहाँ पे अगर A मशीन के लिए आ रहा है तो आप यहाँ पे डाल दो उसको, राइट. लेकिन अगर आप B मशीन के लिए देखोगे तो ये जॉब जाएगा इधर, right. So there will be two different sequences, therefore the job can be placed after the first job. मतलब पहले जॉब के बाद आप इसको डाल सकते हो, और else it can be placed before the sixth job. तो सिक्स जॉब के आगे भी आप इसको डाल सकते हैं, या तो इस तरह से डाल सकते हैं या इस तरह से डाल सकते हैं. So we are going to get two sequences. So therefore या तो आप उसको आगे डालो तो ऐसा सीक्वेंस मिलेगा, या फिर अगर आपने उसको पीछे की तरफ डाल दिया तो आपको मिलेगा इस तरह से सीक्वेंस. So either one of the sequence you will get. After we have got those, we'll again cancel off this column. ये पूरा कॉलम को कैंसिल करेंगे and our problem will reduce to. अब हमारा प्रॉब्लम हो गया reduced. Now this is the problem. अब हम ढूंढते हैं इसके अंदर मिनिमम. तो मिनिमम वैल्यू है 14, जो कि इधर है, इधर भी है और इधर भी है. So we have got the minimum value. The minimum of AIBI is 14, which corresponds to job 5th on machine A and job 2nd and 3rd on machine B. तो इसको प्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे? Therefore the 5th job can be placed after the 4th job or after the first job. डिपेंड करता है आपने कौन सा सीक्वेंस लिया है. Then job 2nd and 3rd can be placed after job 5th in any order. तो आप इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हो like this. सपोज आपने 4th जॉब आगे लिया है, राइट. तो जब अगर आपने इसको आगे लिया है तो यहाँ का 5th जॉब है वो उसके बाजू में चला जाएगा, और 2nd और 3rd उसके बाद में आप कैसे भी डाल सकते हो. आप 3rd को इधर डाल सकते हो, 2nd को इधर डाल सकते हो. इट डिपेंड्स अपॉन यू. और एल्स सपोज आपने ये जो 4th जॉब है इधर ना लेते हुए इधर लिया था लाइक दिस. ये प्रीवियस टेबल में हमने इधर लिया था, तो फिर क्या हो जाएगा? द सीक्वेंस नाउ इज 4th, 1st, 5th. अब हमने क्या कर दिया? 3rd को आगे लिख दिया, 3rd जॉब, 2nd जॉब एंड 4th जॉब. ये आर्बिट्ररीली आप चेंज कर सकते हो ऑर्डर. नाउ देयरफॉर द ऑप्टिमल सीक्वेंसेस, हमें वापस दो ऑप्टिमल सीक्वेंस मिले. सो दीज आर द टू ऑप्टिमल सीक्वेंस दैट वी हैव गॉट. अब इसके लिए हम बनाएंगे हमारा वर्क टेबल. सो लेट्स सी व्हाट इज द वर्क टेबल. सो वर्क टेबल के लिए पहले हम हमारा क्वेश्चन देखते हैं. नाउ सिंस आई एम डूइंग इट ऑन अ पीपीटी, मैं ये टेबल बार बार कॉपी कर रही हूँ. आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है व्हेन यू आर स्टार्ट राइटिंग इट इन द नोटबुक. इट इज ऑलरेडी देयर इन योर क्वेश्चन बुक. यू कैन जस्ट यूज दैट एंड राइट इट, and you can draw the work table directly. No need to write this table again and again. So we are looking at the first sequence. First sequence में हमने देखा था 4th job is taken first. So let's see what has to be done there. So now the same table, जो भी सीक्वेंस हमारे पास यहाँ पे है, वॉट एवर इज द सीक्वेंस ओवर हियर, द सेम सीक्वेंस जो है वो हमने यहाँ पे डाला हुआ है फॉर द जॉब्स. नाउ मशीन ए, मशीन बी, इन टाइम, आउट टाइम फॉर बोथ द मशीन्स. नाउ विल स्टार्ट फिलिंग अप द टेबल द सेम वे दैट वी हैव डन प्रीवियसली. अब एज वी नो फर्स्ट जॉब जब भी मशीन ए में आएगा द इन टाइम इज टेकन एज 0, सो दिस वैल्यू इज 0. अब हम देखेंगे ए मशीन के ऊपर 7 जॉब कितना टाइम ले रहा है. द 7 जॉब इज टेकिंग 5 hours. सो हियर द आउट टाइम इज 5 hours. सो वॉट एवर इज द आउट टाइम ओवर हियर द सेम इज द इन टाइम ओवर हियर. अ फर्स्ट जॉब on machine A is taking 7 hours. So 12, this is 7 plus 5 will give us 12. Now this 12 comes as it is over here. Next is 12, and we are looking at the 4th job on machine A. So 4th job machine A के लिए है 10 hours. So 10 plus 12 will give us 22. Now the in time for this job is 22. This is 5th job on machine A is taking 14 hours. So 14 plus 22 will give us 36. Now इसका जो भी आउट टाइम रहेगा वो हो जाएगा इसका इन टाइम.
Now second job on machine A is taking 16 hours. So 36 plus 16 is going to give us 52. Now 52 will come as it is as the in time for machine next job. Third job अब देखते हैं, it is taking 19 hours on machine A. So 19 plus 52 will give us 71. अब इसका in time हो जाएगा 71. Sixth job on machine A is taking 15 hours. So that is 71 plus 15 will give us 86 over here. अब हम जाते हैं मशीन बी के लिए. जो भी ए मशीन का फर्स्ट जॉब के लिए आउट टाइम रहेगा वो हो जाएगा इन टाइम फॉर मशीन बी ऑफ द फर्स्ट जॉब. सो दैट इज 5 hours ओवर हियर. नेक्स्ट अब हम देखेंगे बी रो. ये वाला रो को हम कंसिडर करेंगे. नाउ वी आर नॉट गोइंग टू लुक एट दिस रो. नाउ लुकिंग एट दिस वन, यहाँ पे हमारे पास है 7 जॉब. मशीन बी के लिए ले रहा है 7 hours. सो 5 plus 7 देखेंगे तो होता है 12. नेक्स्ट 12 ओवर हियर, 12 ओवर हियर. सो हियर द इन टाइम इज 12. Fourth job on first job on machine B is 12 hours. So 12 plus 12 will give us 24. अब हम देखेंगे ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों में मैक्सिमम वैल्यू है 24. So the value is 24 over here. Next fourth job on machine B. So fourth job machine B पे ले रहा है 10 hours. So 24 plus 10 will give us 34. यहाँ पे 34 है और यहाँ पे हमारे पास है 36. So here the maximum value is 36. So it will take 36. अब यहाँ पे है 36. फिफ्थ जॉब में टाइम मशीन बी ले रहा है 16 hours. So 36 plus 16 will give us 52 again. So here it is 52. Next here this is 52. Here also 52. So the in time over for this machine will be 52. Second job is going to take 14 hours on machine B. So 52 plus 14 करेंगे तो होगा 66. बड़ा वैल्यू कौन है? यहाँ पे 66 है, यहाँ पे 71 है. So the value is 71 over here. Next third job on machine B is taking 14 hours. So ये हो जाता है 71 plus 14 will give us 85. Again we'll check this value and this value. 86 is highest, so this will be 86 over here. नेक्स्ट फोर्थ जॉब मशीन बी के लिए ले रहा है 5 hours. So it is taking 5 hours. So 86 plus 5 will give us the value 91. तो या तो ये टेबल हमें मिलेगा या फिर हम वापस इसको यूज करें. हमने सेकेंड सीक्वेंस देखा था. सो सेकेंड सीक्वेंस हमारा था जहाँ पे हमने मेरे ख्याल से फोर्थ जॉब हमने पीछे लिया था. आई हैव रिटन अ रॉन्ग सीक्वेंस हियर. सो फोर्थ जॉब इज टेकन ओवर हियर. यहाँ पे आ गया फोर्थ जॉब. सो यहाँ का सीक्वेंस, द सीक्वेंस ओवर हियर इज 7th job, दिस इज 5th job, फर्स्ट जॉब, देन इट इज 5th job, थर्ड जॉब, देन इट इज 2nd job, then 4th job and then the 6th job. So this is the sequence. गलती से सेम हो गया. नाउ विल अगेन यूज द टेबल. जो हमारा क्वेश्चन वाला टेबल है उसी से हम इसको फिलअप करेंगे. द इन टाइम ओवर हियर विल बी 0. 7 जॉब मशीन ए के लिए ले रहा है 5 hours. सो 5 ओवर हियर, 0 plus 5. इन टाइम इज 5. फर्स्ट जॉब इज टेकिंग 7 hours. सो दिस इज 5 plus 7 विल गिव अस 12. 12 as it is. 12 plus here the value is 14. So 12 plus 14 will give us 26 over here. Now 26 as it is. Third job is taking 19 hours. So 26 plus 19 करेंगे तो हो जाएगा 45. Here 45 will come as it is. Next is second job is taking 16 hours. So 16 plus 45 हो जाएगा 61. So this value is 61 as it is. अब देख रहे हैं fourth job is taking 10 hours. So this value is 71. So this value will come 71 as it is. 71 plus 6 job ले रहा है 15 hours. So this value is 86.
Next is, now we'll go for machine B. Machine B, the in time will be starting with the 5 hours. अब हम देख रहे हैं 7 job on machine B is 7, so 5 plus 7 will give us 12. So here also there is 12, here also 12, so the value comes out 12. नेक्स्ट हम देख रहे हैं फर्स्ट जॉब ऑन मशीन बी इज टेकिंग 12 hours, so 12 plus 12 is 24. Here there is 24, here it is 26, so it will take the value 26. Next is fifth job. Fifth job is taking 16 hours, so 26 plus 16 करेंगे तो हो जाएगा 42. यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 45 है, तो यहाँ पे इन टाइम हो जाएगा 45. नेक्स्ट 45 ओवर हियर एंड वी आर सीइंग नाउ जॉब नंबर 3. जॉब नंबर 3 ले रहा है 14 आवर्स ऑन मशीन बी, सो दैट इज 45 प्लस 14 विल गिव अस 59. अब यहाँ पे 59 है, यहाँ पे 61 है, सो द इन टाइम इज 61. Next is second job. Second job is taking 14 hours, so 14 plus 61, so 14 plus 61 will give us 75. Here it is 75, 71, so the value comes out to be 75. Next हम देख रहे हैं फोर्थ जॉब. फोर्थ जॉब इज टेकिंग 10, so 75 plus 10 will give us 85. Here 85, here 86, so value is 86 over here. Up 86 and the last job is the sixth job. Sixth job ले रहा है 5 hours, so 86 plus 5 will give us 91. So ये हो गया हमारा टेबल. If you look at these value, total elapsed time, चाहे ऐसा सीक्वेंस लो या फिर सीक्वेंस ये वाला लो, एनी सीक्वेंस, बोथ द आंसर विल गिव यू द सेम टाइमिंग. सो दैट इज द टोटल इलैप्स टाइम. सो टोटल इलैप्स टाइम इज 91 आवर्स. अब हमें चाहिए है व्हाट इज आइडल टाइम फॉर मशीन ए मशीन के लिए हम क्या करेंगे, हम ये सभी जो रो है हमारा इन सब का टोटल करेंगे और उसको हमारा जो टोटल इलैप्स टाइम मिला है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो आइडल टाइम फॉर मशीन ए इज टी माइनस सम ऑफ द प्रोसेसिंग टाइम ऑफ ऑल जॉब्स ऑन मशीन ए. सो दैट इज 91 माइनस दिस इज 7 प्लस 16 प्लस 19 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 5. So that is 91 minus 86 and that will give us the value 5 hours. Now one more thing, ये जो आपका टोटल मशीन ए के लिए जो टाइम है वो आपको यहाँ से भी मिल सकता है टोटलिंग, बिकॉज दिस इज नथिंग बट द टोटलिंग ऑफ द फर्स्ट वैल्यूज, राइट. लेकिन इसका वैल्यू अगर आप देखोगे टोटल करने के लिए बी का, देन द वैल्यू विल चेंज. So idle time for machine B is T minus sum of the processing time for all the jobs on B. So B के ऊपर कितने टाइमिंग्स है, 12 plus 14 plus 14 plus 10 plus 16 plus 5 plus 7. So that is 91 minus करेंगे all this sum of this values. So that is 91. This should be 91 minus 78 and 91 minus 78 will give us 13 hours. So I hope you have understood this method, how to solve the sequencing problem. So students, will stop over here for the day. Have a nice day and thank you.